I've just given the country of America $1 trillion to spend. बिटकॉइन कहाँ से बन रहा है? बिटकॉइन के टोकन कहाँ से निकल रहे हैं? कोई बहुत बड़ा सोर्स कोड भी नहीं है. So there was this guy called Satoshi Nakamoto. We don't know his real identity yet. Mining bitcoins. So Yes. what does that mean? I have been a big crypto skeptic. I am so late to the party, and you have to explain to me firstly what is crypto. Like 100 years from now, do we expect cryptocurrencies to play a bigger role in our life? The central government can come and say, okay, I've just given the country of America $1 trillion to spend. Where did those $1 trillion come from? The central government literally created that money out of thin air, right? And when central government created that $1 trillion out of thin air, everybody in America became poorer because now there's more supply of money in the economy, but everybody in America is still holding the same amount of money, right? And all the assets inflate and so on. Now, what does cryptocurrency say? The cryptocurrency takes this power away from the central government, and it says that we will maintain books of accounts, who has how much money, in a decentralized fashion. There'll be no one person who can say who has how much money. Because once you make it decentralized, the power is no longer with the central bank to say who has how much money. So who has how much money? How is that decided? Who has more cryptocurrency? So it's decided in two very, very simple ideas. Imagine a text file where all you can do is you can add a line. You can never delete or edit a line that's already been added, okay? So we call it a append-only journal. Now a fourth line can be added, a fifth line can be added, and so on. So that's rule number one. It's an append-only text file, add-only text file. Now, what is the second rule? क्योंकि सिर्फ add-only text file है, तो ठीक है, विकास जाके लिख देगा कि बिगलानी ने विकास को 100 के 100 दे दिए. तो how do we validate कि हम वो राइट किसको दे लिखने की? और आप जिसको भी वो राइट दोगे उस टेक्स्ट फाइल में लिखने की, वही सेंट्रल बैंक बन जाएगा, राइट? उसी के पास पावर है. The second innovation is that instead of having one accountant, the central bank, that's the accountant जो कि ये accounts maintain कर रहा है, we will have n number of accountants all throughout the world. और हम उसी फाइल को विश्वास करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द नेटवर्क कि जो मेजॉरिटी अकाउंटेंट्स को उसको सही मानते हैं. तो बस ये दो सिंपल फैक्ट से पूरी क्रिप्टो करेंसी बनी है. I've got two questions. मैं पहला वाला बोलता हूँ, ये आ कहाँ से रहा है? जैसे सबसे पहले गोल्ड आता था. Gold was the original form of currency. Yes. And gold was कि someone was mining it. Yes. तो right. Even Bitcoin, we hear the terms mining Bitcoins. So yes. What does that mean? तो for example, आज मैं और तुम मिलके एक आम के बाद का टोकन बना सकते हैं और लिटरली 200 लाइन का ही कोड है, कोई बहुत बड़ा सोर्स कोड भी नहीं है. बोल दिया कि 10,000 टोकन्स हैं और फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे लाइव चैनल में के सवाल पूछेगा उसको 10 टोकन दे देंगे बिकॉज वो हमारे चैनल को इंप्रूव कर रहा है, राइट? तो ये बिटकॉइन कहाँ से बन रहा है? बिटकॉइन के टोकन कहाँ से निकल रहे हैं? एग्जैक्टली. तो so there was this guy called Satoshi Nakamoto. We don't know his real identity yet. Yeah. तो उसने क्या कहा कि उसने वो 200 लाइन की सॉफ्टवेयर लिखी और उसने कहा कि ये रही टेक्स्ट फाइल जो कि लेजर है, किसके पास कितने टोकन्स हैं, और उसने सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर और ओपन सोर्स कर दिया, सॉफ्टवेयर भी और टेक्स्ट फाइल भी, राइट? क्योंकि उसके बाद कोई सेंट्रल अकाउंटेंट की तो जरूरत है नहीं. और उसने कहा कि अब इनिशियली तुमको सीडिंग करनी पड़ेगी, राइट? तुमको तो कुछ टोकन्स लोगों को बांटने होंगे, तभी तो लोग एक्सचेंज करना. जैसे हमने कहा कि साइकिल जब सवाल पूछेगा तो उसको हम टोकन्स देंगे, और उसने क्या कहा कि अगर तुम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मैं तुम्हें टोकन्स दूंगा. तो लोगों ने वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी. एंड इनिशियली जिन्होंने अपने अपने कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर लगा के मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी, एंड दोस वर आर्बिट्ररी प्रॉब्लम्स, इट्स नॉट जस्ट हेल्पिंग इन एनी साइंटिफिक रिसर्च और एनीथिंग, एंड दोस पीपल स्टार्टेड टू गेट टोकन्स. एंड दैट्स हाउ सडनली पहले 10 लोगों के पास टोकन्स आए, फिर 1000 लोगों के पास, फिर 10,000 लोगों के पास. तो ऐसे करके अभी कहां से आ रहे हैं? अभी किसके पास आ रहे हैं टोकन्स? हाँ, अभी कहां से आ रहे हैं? हाँ, तो अब उसने एक रूल बनाया अपने सॉफ्टवेयर में कि हर साल मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन से नए इशू करूंगा. तो और टोटल नंबर ऑफ टोकन्स मेरी बिटकॉइन के 21 मिलियन ही होंगे. तो उस 21 मिलियन में से 19 मिलियन टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो गए
अब जो बाकी के 2 मिलियन टोकन है वो स्लोली स्लोली हर साल जो एक उसकी लिमिट है उस लिमिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं।